Good morning to all students. Student, in this video, I will explain chapter number 16 of grammar book. The title of this chapter is the continuous tense. As you know students that continuous means हमारी एक्शन कंटिन्यू होना। तो ये चैप्टर में हमें तीनों टेंसेस के कंटिन्यूअस फॉर्म्स को समझना है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सो लेट अस सी इन द डिटेल द कंटिन्यूअस टेंस। नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, रीड दिस सेंटेंसेस। द गर्ल्स आर प्लेइंग कबड्डी, द बॉयज वेर रेसिंग इन द फील्ड, the teachers will be correcting the answers. Now students, here all the highlighted words represent continuous tense. Now the first sentence is of present continuous tense because here it is written are playing. Now the second sentence is of past continuous tense because here written were racing. And the third sentence represent future continuous tense because here written will be correcting. Okay, so in all these three sentences one thing is common, and what is that? Look at here, if you observe the verb form of these three tenses, playing, racing and correcting. So in all three tenses in continuous tense we have to put ing at the end of the verb. Now look at here, the verbs in bold are in the continuous tense. We use the ing or the present participle. यहाँ पे आप वर्ब को ing लगाओ और उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हम बोल सकते हैं। फॉर्म ऑफ द वर्ब टू शो द कंटिन्यूअस टेंस। नाउ लुक एट हियर in detail the present continuous tense. We use the present continuous tense to express an action that is going on at the moment. So when we are speaking that sentence at that time, the action is going on. Going on का मतलब है चालू होना, वो action हमारी चालू कंडीशन में है, वो दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। लुक एट हियर, आई एम सिटिंग एट माई डेस्क, आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम। सो हियर सिटिंग की एक्शन है वो कंटिन्यू है और इधर भी स्टडिंग की जो एक्शन है वो भी कंटिन्यू है। तो इधर दोनों सेंटेंसेस में एम सिटिंग, एम स्टडिंग, तो दोनों वर्ब में के साथ आईएनजी यूज किया है। सो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? सब्जेक्ट, हियर सब्जेक्ट इज आई, then am is are compulsory we have to use in present continuous tense. So here am is used and verb with ing. So here ing का verb के साथ use करना पड़ता है compulsory in present continuous tense, sitting, studying and plus object at my desk and here for my exam. So this is the structure of present continuous tense. We also use it to express temporary action which may not actually be happening at the moment of speaking. Sometimes some action at the time of speaking not actually happen. Okay, but for expressing temporary action we can also use present continuous tense. For example, she is learning to drive a car. मीन्स इधर उसकी जो एक्शन है वो इधर कंटिन्यू नहीं है बट इट्स अ टेम्पररी एक्शन, वो कार सीख रही है। शी इज लर्निंग टू ड्राइव अ कार। ताहा इज अटेंडिंग अ स्पेशल क्लासेस इन स्कूल। सो दैट इज अ टेम्पररी एक्शन which may not be actually be happening at the moment of speaking. वो अटेंड कर रही है स्पेशल क्लासेस इन स्कूल में, ठीक है। तो जब ये बोलने के टाइम पे ये सेंटेंसेस में उसकी जो एक्शन है वो कंटिन्यू नहीं है बट एक्सप्रेस अ टेम्पररी एक्शन विच में नॉट एक्चुअली बी हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। तो ऐसी एक्शन का भी हम उल्लेख ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। We use it to indicate temporary situations and situations that are slowly changing.
सम सिचुएशंस, टेम्पररी सिचुएशंस, और कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस में स्लोली चेंज भी आता है। तो ऐसे सिचुएशंस दिखाने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। लुक इट हियर, some example given in your book. My grandfather is feeling better now. So here grandfather की जो हेल्थ कंसर्निंग जो सिचुएशन है उसमें थोड़ा चेंजेस आ रहा है। दैट्स वाई हियर यूज्ड इज फीलिंग बेटर नाउ। तो धीरे धीरे उनकी तबीयत है वो ठीक हो रही है, ऐसा दिखाने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। ही इज स्टेइंग विद अस फॉर अ फ्यू वीक्स। वो हमारे साथ थोड़े वीक से रह रहा है, तो उसमें भी स्लोली चेंजेस आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस दिखाने के लिए भी हम ये टेंस का यूज़ करते हैं। वी यूज़ इट टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैज़ बीन प्लान टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। अब हमारे लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम नियरेस्ट फ्यूचर्स के लिए कुछ प्लान बनाते हैं। तो ऐसे कोई भी इवेंट्स और सिचुएशंस को लेके भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। वी आर लीविंग फॉर रूरकेला नेक्स्ट सैटरडे। तो नेक्स्ट सैटरडे वी आर लिविंग फॉर रूरकेला मीन्स वो हमारा फ्यूचर का प्लान है, नियरेस्ट फ्यूचर का प्लान है। तो उसमें भी हम आर लिविंग, तो इधर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। वी आर हैविंग अ फेयर इन आवर स्कूल दिस विंटर। तो हमारे स्कूल में ये विंटर में क्या रखने वाले हैं, फेयर। तो ऐसा कोई भी नियरेस्ट फ्यूचर के लिए जो भी हम कुछ प्लान बना रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। वी यूज़ इट टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपन्स वेरी ऑफ्टन, यूजुअली इन अ नेगेटिव मैनर। The brothers are arguing all the time. Okay, Soumya is watching TV all day. So, some action happen very often, usually in a negative manner. The brothers are arguing all the time. So here are arguing is suggest present continuous tense because here the subject is given in plural form. That's why here used are. And Soumya is watching TV all day. Here subject is singular, that's why we are using is, and verb with ing, that is watching. Okay, so these are certain examples you have to read with proper concentration. Now look at here. We do not usually use the verbs believe, cost, hear, understand, see, seem, think, prefer, need, own, know, love, and so on in the present continuous tense. So very carefully read this two line. Once again I am reading for you students. We do not usually use the verbs believe, cost, hear, understand, see, seem, think, prefer, need, own, know, love, and so on in the present continuous tense. तो यूजुअली हम ऐसा वर्ब्स का यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। तो ये जो भी बोल्ड वर्ड्स में दिया है, ये सभी वर्ब्स आपको अच्छी तरह से याद रख लेने हैं कि इसका यूज़ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। तो ये हमने बात की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, एंड आई होप कि यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. Now we have to move towards next tense, and that is past continuous tense. Look at here. We use the past continuous tense to refer to an action that was going on for a certain period of time in the past. तो हमने प्रेजेंट में देखा कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो हमारी एक्शंस कंटिन्यू है वो दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कब करते हैं, रिफर टू एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। तो इसमें ऐसे एक्शंस के बारे में बात किया जाता है कि पास्ट टाइम में सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में वो एक्शन हमारी कंटिन्यू थी, वो दिखाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं।
Look at here. First of all, I will tell you students what is the structure of past continuous tense. Subject plus सब्जेक्ट्स के साथ हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वेयर कंपल्सरी लगाना पड़ता है, आइदर वॉज और वेयर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड प्लस वर्ब इन अ पास्ट फॉर्म, verb in a ing form. Okay, here also like present tense also we have to put verb with ing and plus object. So I repeat once again the structure of past continuous tense: subject plus compulsory either was or were according to the subject plus verb with ing. ये बिल्कुल भूलना नहीं है, वर्ब के साथ ing फॉर्म हमें लगाना है and plus object. Look at here certain examples given in your book. We were working late last night. So here were working suggests that this sentence is written in past continuous tense. See the another. I was messaging her frequently. So in certain period of time that action was continue. Okay. So I repeat once again. We were working late last night. कल रात को हम देर तक क्या कर रहे थे? वर्किंग कर रहे थे. तो इधर हम देख सकते हैं कि जो हमारे वर्क करने की जो एक्शन है वो कल रात सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में वो कंटिन्यू थी. ठीक है. एंड आई वॉज मैसेजिंग हर फ्रीक्वेंटली. मैं उसको मैसेजिंग फ्रीक्वेंटली कर रही थी. ठीक है. तो यहाँ भी मैसेजिंग करने की जो एक्शन है वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में इन द पास्ट टाइम में वो कंटिन्यू थी. ठीक है. नाउ लुक एट हियर. वी ऑल्सो यूज इट टू शो that one thing happened while another thing was going on. ठीक है. तो ये तो हमें समझ में आ गया कि पास्ट टाइम में सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में हमारी एक्शंस उस टाइम पे कंटिन्यू थी, वो दिखाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते थे. अब दूसरा कौन सा यूज़ करते हैं? तो जैसे कि वी ऑल्सो यूज इट टू शो दैट वन थिंग हैपन वाइल अनदर थिंग वॉज गोइंग ऑन. ठीक है. एक हमारी कोई भी एक्शन चालू होती है उस टाइम पे दूसरा भी थिंग्स हैपन होती है, कुछ बनता है. तो ऐसे दो एक्शंस का मेंशन भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में कर सकते हैं. तो वो कैसे? सीधा एग्जांपल. आई वॉज रीडिंग व्हेन द डोरबेल रैंग. जब मैं पढ़ रही थी तब क्या हुआ? डोरबेल बजा. ठीक है. तो यहाँ दो एक्शन हुई. वॉज रीडिंग वो तो हमारी कंटिन्यू एक्शन दिखाई है, बट उस टाइम पे डोरबेल रैंग भी हुई, डोरबेल भी बजी. तो यहाँ पे दो एक्शन हुई. तो ऐसे दो एक्शन का एक साथ मेंशन करने के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं. सीधा अनदर एग्जांपल. वी वर प्लेइंग आउटसाइड व्हेन इट बिगन टू रेन. जब हम बाहर खेल रहे थे, हमारी खेलने की जो एक्शन थी वो उस टाइम पे कंटिन्यू थी. तब क्या हुआ? When it began to rain. तब बारिश भी स्टार्ट हो गई. तो यहाँ पे भी दो एक्शंस दिखाया है. तो ऐसे दो एक्शन एक साथ दिखाने के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. Now look at here. We use it to show that an action happened repeatedly in the past. ओके. कोई एक्शन रिपीटेडली बार बार होती है पास्ट में, तब भी हम ये टेंस का यूज करते हैं. ठीक है. They were practicing every day. तो यहाँ प्रैक्टिसिंग की जो एक्शन है वो रिपीट होती है बार बार. ठीक है. एवरी डे. तो इधर वेर प्रैक्टिसिंग. ठीक है. तो ऐसी कोई भी एक्शंस है वो रिपीटेडली बनती है पास्ट में, तब भी हम ये टेंस का यूज कर सकते हैं. लुक एट द अनदर एग्जाम्पल. शी वॉज अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑल ओवर द कंट्री. तो यहाँ पे भी उसका जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की जो एक्शन है वो रिपीटेडली होती है पास्ट में. दैट्स वाई वॉज अटेंडिंग इज रिटन. ठीक है. वी यूज इट टू शो चेंज और ग्रोथ. ठीक है. फिर कोई चेंज और ग्रोथ के बारे में भी हमें बात करनी है, तभी हम ये टेंसेस का यूज कर सकते हैं. ही वॉज क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ सक्सेस. तो इधर उसमें ग्रोथ के बारे में दिखाया है कि वो सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है. ठीक है. ही वॉज क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ सक्सेस.
And look at the another example. They were restoring one of Van Gogh's painting. ठीक है, तो इधर दोनों एक्शंस में चेंज और ग्रोथ के बारे में बताया है, तो ऐसे मैटर्स में भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं. तो आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ वी मूव टुवर्ड्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ओके, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, look at here, we use the future continuous tense to express future action that are already planned for a time in the future. तो यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमें वो एक्शंस बतानी है जो हमें फ्यूचर के प्लान जो हमने किया है नियरेस्ट फ्यूचर. ठीक है, तो एट दैट टाइम आवर एक्शन विल बी कंटिन्यू इन फ्यूचर टाइम. तो ऐसे मैटर्स को दिखाने के लिए, ऐसे एक्शंस दिखाने के लिए भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. सी द फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज सब्जेक्ट प्लस शेल विल इज कंपल्सरी प्लस बी इज देयर एंड प्लस वर्ब विद आईएनजी. This is the structure of future continuous tense. Look at here. We will be meeting outside Ravi's house at 9 a.m. तो इधर हमें फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताया है कि क्या बताया है. We will be meeting, हम मिलेंगे. कब मिलेंगे? आउटसाइड रविज हाउस एट 9 a.m. ठीक है, रवि के घर के बाहर शार्प एट 9 a.m. They will be leaving the house really early. Okay, so here will be leaving, will be meeting. All these words highlighted that these sentences are given in future continuous tense. Okay, तो हम दूसरा यूज कैसे करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का? We also use it to express action that will be going on at a certain time in the future. ठीक है, तो फ्यूचर में वो हमारी एट अ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड में वो हमारी एक्शन कंटिन्यू रहेगी, वो दिखाने के लिए भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. लुक एट हियर, ही विल बी वर्किंग फ्रॉम होम फॉर अ फ्यू वीक्स. इधर विल बी वर्किंग लिखा है, तो इधर हम देख सकते हैं कि इट एक्सप्रेस एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर. See the next example. They will be judging the entries to the contest. So all these sentences represent that the action that will be going on at a certain time in the future. Now which is the another use? We use it to show action that will take place regularly in the future. अब फ्यूचर में कोई भी एक्शंस रेगुलरली होगी, उसके लिए भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. वी विल बी स्पेंडिंग टाइम अवे फ्रॉम द सिटी ऑन द वीकेंड्स. ठीक है, सी विल बी गोइंग फॉर अ म्यूजिक लेसन्स एवरी ट्यूसडे. तो इधर जो एक्शंस ये दोनों सेंटेंसेस में बताई है वो एक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन द फ्यूचर टाइम्स. सो दैट्स वाई we can here use will be spending, will be going. So all these sentences show the future continuous tense. Okay, now look at here, forms of the continuous tense. This table shows us how to form verbs in the continuous tense. This table is a very important table, and if you go through this table you can learn properly what is the different tenses, format, and even you have to read examples also. Look at here, the usage is given, then tense, then form, and then example. Look at here, positive sentences. If the positive sentences are given, what is the structure in a different tenses, and even the examples are also given very nicely. Present continuous tense. If the sentence given in positive sentences in present continuous tense, what is the format? सब्जेक्ट तो हमें रखना ही है, वो तो सबको पता ही है. उसके बाद हमें क्या ऐड करना है? एम इज आर. आइदर वी हैव टू यूज एम और is or are according to the subject. Then present participle. इधर आप present participle कहो या verb with ing कहो, दोनों one and same है. ठीक है, तो present participle form of the verb. Look at here, am talking, is sleeping. So these are the examples. ओके, सो हमने यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात किया. अब पास्ट कंटिन्यूअस में
कैसा फॉर्मेट रहेगा। तो सिर्फ हमें चेंज क्या करना है, बहुत ही इजी है आपको याद रखने में। सिर्फ आपको ध्यान कहाँ रखना है, जैसे कि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम इज आर लगाया, तो पास्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ हमें क्या चेंज करना है, वॉज और वेयर। सब्जेक्ट तो रहेगा ही, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो दैट इज कॉल्ड इन शॉर्ट फॉर्म पीपीटी। ओके, past participle form of verb. So either if the subject is singular we are writing was talking, if the subject is plural then we are writing were sleeping। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स हमें was और were सिलेक्ट करना है और वर्ब को ing लगाना है। इधर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ एम इज आर लगाना है, पास्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ हमें वॉज और वेयर लगाना है। नाउ व्हाट इज द चेंज इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, लुक एट हियर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, विल बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इधर हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है, जैसे कि सब्जेक्ट्स, उसके बाद हमें आइदर शैल और विल बी। ठीक है, तो अब सभी जगह पे विल भी लगाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो विल भी कंपल्सरी लगाना पड़ता है एंड प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब विथ आईएनजी फॉर्म। सो लुक एट हियर, विल बी टॉकिंग, विल बी स्लीपिंग। तो इन तीनों टेंसेस में आपने देखा होगा कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो रहेगा ही। ठीक है, सिर्फ चेंजेस हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम इज आर लगाना है, पास्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ हमें वॉज वेयर लगाना है और फ्यूचर कंटिन्यूअस में सिर्फ हमें विल के साथ बी लगाना है। बस इतना ही चेंज है, वो आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। ठीक है, तो अब ये हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में बात किया। तो देन व्हाट इज द डिफरेंस इन नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अब नेगेटिव सेंटेंसेस दिया है तो उसमें हमें क्या करना है, तो जो भी फॉर्मेट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जैसे कि हमने सब्जेक्ट उसके बाद एम इज आर लगाया, तीनों में से कोई भी एक, और उसके बाद कंपलसरी हमें नॉट लिखना पड़ेगा, तभी जाके सेंटेंसेस हमारा नेगेटिव में चेंज होगा। और बाकी का फॉर्मेट इज इट इज रहेगा, जैसे कि एम नॉट रीडिंग, आर नॉट वॉचिंग। ठीक है, और वर्ब को आईएनजी तो लगाना ही है, सिर्फ चेंज हमें क्या करना है, एम इज आर के बाद हमें डायरेक्ट नॉट रख देना है। तो ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करना है, जैसे हमने सब्जेक्ट्स के बाद वॉज वेयर लगाया और वॉज वेयर के बाद हमें लगाना क्या है, सिर्फ नॉट। तो ये नहीं भूलना है, अगर आप नॉट भूल जाते हो सेंटेंस में लिखना तो वो सेंटेंस आपका नेगेटिव नहीं बनेगा। तो ये बात बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है कि वॉज और वेयर के बाद कंपलसरी हमें नॉट का यूज़ करना है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो हमें ऐसे ही रखना है, वॉज नॉट रीडिंग, वेयर नॉट वॉचिंग। ठीक है, और सेम वे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी हमें क्या करना है, जैसे कि हमने विल बी लगाया तो उसके बीच में हमें नॉट ऐड कर देना है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल, और विल के बाद डायरेक्ट हमें नॉट लगा देना है और उसके बाद भी रखना है। ठीक है, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो रहेगा ही। ठीक है, तो सेंटेंसेस कैसे हो जाएगा, विल नॉट बी रीडिंग, विल नॉट बी वॉचिंग। तो ये सब नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें ये फॉर्मेट फॉलो करना है। ठीक है, अब यस नो क्वेश्चंस रहेंगे तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना है, तो जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसका जो बेस वर्ब है वो सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले हमें लिख देना है। जैसे कि एम इज आर का हमने यूज़ किया है तो एम इज आर पहले रख देना है, बाद में सब्जेक्ट रखना है और उसके बाद क्या करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो जो भी वर्ब विथ आईएनजी फॉर्म है वो तो सेम ही रहेगा। तो देखो सेंटेंसेस कैसे हो जाएगा, इज ही पेंटिंग अ पिक्चर, तो पिक्चर के बाद हमें कंपलसरी क्वेश्चन मार्क की साइन लगानी पड़ते हैं। ठीक है, अब पास्ट कंटिन्यूअस में हमें क्या करना है, तो उसमें भी सब्जेक्ट्स के पहले हमें वॉज वेयर ऐड कर देना है और बाद में सब्जेक्ट्स करना है। और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो रहेगा ही, तो जैसे कि वॉज ही पेंटिंग अ पिक्चर। ओके, तो इसी तरह से हमें जो उसका वॉज और वेयर है उसको फर्स्ट पोजीशन में डाल देना है और सब्जेक्ट को सेकंड पोजीशन में डाल देना है और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क साइन। ओके,
तो यही चेंजेस हमें यस नो क्वेश्चंस में करना है, ठीक है। अब क्वेश्चंस बिगिनिंग विद वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, विच, हाउ एंड सो ऑन, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें हमें विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पे जैसे कि ये यस नो क्वेश्चंस के लिए है स्टूडेंट्स, तो इधर फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी हमें विल या शैल जो भी है उसको आगे ले जाना है, फिर सब्जेक्ट्स को लिखना है, ही एंड देन बी को लिखना है, एंड देन आफ्टर पेंटिंग अ पिक्चर, ओके। तो इसी तरह से करना है। तो अब यहाँ पे थोड़ा लाइनिंग में थोड़ा स्टूडेंट्स मिस्टेक है, ये तीनों आपको यस नो क्वेश्चंस का फॉर्मेट इधर बताया है बुक में, ये आपको इसमें फॉर्मेट में फॉलो करना है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे क्वेश्चंस बिगिनिंग विद वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर एंड विच, हाउ एंड सो ऑन, तो ऐसे जब वर्ड्स दिए गए हैं तब हमें कौन सा फॉर्मेट यूज करना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमें क्वेश्चन वर्ड यानी WH वर्ड हमें सबसे पहले रख देना है, उसके बाद एम इज आर का यूज करना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स वर्ब विथ ING। तो सबसे पहले ऐसा कोई भी वर्ड दिया है, व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, विच है, वो सबसे पहले लिखना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स हमें एम इज आर का सिलेक्शन करना है, एंड देन आफ्टर हमें जो भी सब्जेक्ट सेंटेंस में दिया है वो लिखना है, और उसके बाद वर्ब विथ ING एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। सो विच बी द सेंटेंस विल बी व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट आर दे डूइंग। सो इस तरह से हमें क्वेश्चन का जो बिगिनिंग विद वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, विच से होता है उसमें ये फॉर्मेट हमें फॉलो करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ सी दैट क्वेश्चंस बिगिनिंग विद वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, विच, हाउ एंड सो ऑन, तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखा, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमें क्या ध्यान रखना है, तो उसमें भी सेम उसी तरह से क्वेश्चन वर्ड हमने पहले लिख देना है, उसके बाद वॉज और वेयर प्लस उसके बाद सब्जेक्ट एंड प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो व्हाट के बाद डायरेक्ट हमें वॉज या वेयर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो इधर सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट है दैट्स वाई हमें यहाँ वेयर लिखा है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इधर हमें वॉज लिखना है। दे एंड वर्ब विथ पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मीन्स वर्ब विथ ING, व्हाट वेर दे डूइंग, ओके। तो इधर क्वेश्चन मार्क साइन लास्ट में ऐड करना है, ठीक है। तो ये हुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेट, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड दिया है तो हमें इस तरह से फॉलो करना है। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी बहुत ही माइनर डिफरेंस है, लाइक दिस वे ओनली। क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हमें फर्स्ट लिखना है, प्लस विल या सेल जो भी दिया है वो हमें लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट्स लिखना है, प्लस बी एंड प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब विथ ING फॉर्म। तो सबसे पहले जो भी वर्ड्स दिया है वो हमें डालना है, या कोई भी वर्ड्स WH वाला हो सकता है, व्हेन, व्हाट, वेयर, विच एक्सेट्रा। तो इधर व्हाट, देन आफ्टर विल का यूज किया है, एंड देन सब्जेक्ट they, then be is compulsory, and here present participle form is doing. So what is the question, what will they be doing, and at the end of the sentence question mark sign. So students, this table is a very important table. All of you read this table 2 times properly, and all the rules whatever I have discussed in this video you have to go through once again with a proper concentration and try to understand. Okay students, so this is first part of this chapter 16, the continuous tense, and in second part I will discuss textual exercise. Till then you have to learn this table by heart and read all the rules of this chapter, the continuous tense. Thank you. Have a nice day to all of you.